Very good morning, students. I am Megha Agarwal, your computer teacher from Nalanda Public School. Today, I am sharing this video with you all so that this video is based on the reading section of lesson number 3. Okay, why I am sharing the video of the reading section? You know why? Because I think that reading is very important to improve your vocabulary, and the most important thing is that if you have to appear for the online examination and the pattern will be same as you have given already the MCQs pattern, then for that the reading is very important. You have to read the chapter. मैं explain तो आपको करती ही हूँ हर वीडियो में, समझाती हूँ हर चीज़, लेकिन what I want that you should read the chapter. Each line you should learn, you should read properly so that it remains in your mind for the longer time. If you will read each of the line properly now and understand it, then it will be in your mind for the longer time. So please I request my dear students that please do the reading of the chapter. It is very important to understand the chapter and to keep the main points of the chapter in your mind. Okay, so starting with the reading section of lesson number 3. I have already explained you this chapter. We have done this chapter, but still I am again sharing this video with you all. I am again explaining you the chapter with the reading part also. Okay, so as we do in our class, I used to read the chapter, or I told you to read the chapter in the similar manner. I'm going to do the same here. Okay, I'm going to read one line and explain it to you, then again I will read another line and explain it to you. Okay, so here we are starting with lesson number 3, MS Word text editing and formatting. MS Word text editing and formatting. Okay, so we'll learn about MS Word text editing and formatting. What is editing and formatting? एडिट एज द नेम सजेस्ट, एडिट करना मतलब किसी भी चीज़ में कुछ एड ऑन करना, उसको डिलीट करना, उसमें कुछ चेंजेस करना. एनी चेंजेस दैट यू आर क्रिएटिंग और यू आर डूइंग इन एनी ऑफ द ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स एडिटिंग. एंड व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग मीन्स फॉर्मेट करना. फॉर्मेट करना मीन्स टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक मोर ब्यूटिफुल एंड प्रेजेंटेबल. आपके डॉक्यूमेंट की face को beautiful banana. Okay, so in this chapter we'll going to learn about the word and how we can do the text editing and formatting. text की editing और उसकी formatting के बारे में पढ़ेंगे. So you know guys that this is a girl, her name is Matrix, and this is a boy, his name is Compu. So both are talking with each other and saying that, dear Matrix, dear Matrix, sometimes I make mistakes while working on a document. कभी कभी मैं काम करते समय कुछ गलतियां कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में. प्लीज़ टीच मी हाउ टू एडिट द डॉक्यूमेंट. प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मैं कैसे डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूँ. एंड सम बेसिक टूल्स टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट. और कुछ मुझे बेसिक टूल्स बताओ जिससे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकूँ, मतलब उसको ब्यूटीफुल बना सकूँ, प्रेजेंटेबल बना सकूँ. ओके, सो मैट्रिक्स बोलती है, ओके कॉम्प्यू, ठीक है कॉम्प्यू, इट्स ईजी टू एडिट अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट को एडिट करना बहुत ईजी है. वी विल लर्न अबाउट देम, हम उनके बारे में ज़रूर सीखेंगे. अलॉन्ग विथ सम बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स, उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे? जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं ना, बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं. बेसिक मतलब स्टार्टिंग, एकदम सिंपल जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं वो हम सीखेंगे. Okay, so what is editing? In the previous class means in class 3, you have learned about editing the text. हमने text editing सीखी हुई है, in which you make correction, deletion or delete or modify the text in a document. Editing means हम जिसमें correction मतलब कोई changes करते हैं, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 3.
In this chapter, you will learn about some more parameters of editing. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और ज़्यादा एडिटिंग के पैरामीटर्स देखेंगे कि और किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ओके हियर कॉपिंग द टेक्स्ट. कॉपी करना मीन्स किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ना कॉपी करना. कॉपी करना मीन्स डुप्लीकेट क्रिएट करना. इस वर्ड को आप याद रखिए, डुप्लीकेट. कॉपी करना मीन्स डुप्लीकेट. DUPLICATE, डुप्लीकेट. कॉपिंग द टेक्स्ट मीन्स डुप्लीकेट क्रिएट करना. अपनी जो भी फाइल है उसकी एक और फाइल बनाना, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना. ओके, सो हियर copying the text means to copy the text or the data from its original location to some other location. अगर हम कॉपिंग द टेक्स्ट की बात करें तो कॉपिंग द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अपने डेटा को कॉपी करना, उसकी ओरिजिनल प्लेस से उसको कॉपी करना और उसको दूसरी लोकेशन पे भी प्लेस करना. मीन्स कॉपिंग द टेक्स्ट मीन्स कॉपिंग द टेक्स्ट, कॉपी करना, और कॉपिंग द टेक्स्ट और द डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू सम अदर लोकेशन. It allows to repeat the text or data in the document without having to retype. आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा. जैसे हम बोलते हैं ना एप्लीकेशन लिखना है, हमको हर सब्जेक्ट टीचर को अपने एप्लीकेशन देनी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको अलग अलग एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट टीचर्स के लिए. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने कंप्यूटर पे फाइल बनाई हुई है तो कंप्यूटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक बार लिखेंगे उस फाइल को और दोबारा के लिए हम क्या कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे. कॉपी कर लेंगे तो हमको दोबारा उसको लिखना नहीं पड़ेगा. ओके, न्यू लोकेशन पे न्यू आप वर्ड पे उसको न्यू फाइल पे कॉपी कर सकते हो. सो कॉपी करना मतलब डुप्लीकेट क्रिएट करना. जो ओरिजिनल है वो तो आपके पास रहेगा ही, साथ में उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना कि टेक योर मार्कशीट एंड ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दिस. ओके, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लो और इसकी एक कॉपी लेकर आओ. कॉपी लेकर आओ मीन्स इसकी एक फ़ोटो कॉपी लेकर आओ. ओरिजिनल तो आपके पास रहती ही है, लेकिन आप उसकी क्या करते हो, एक कॉपी क्रिएट करते हो. ओके, सो कॉपिंग मीन्स आप एक डुप्लीकेट फाइल उसकी बना रहे हो. ओरिजिनल तो रहेगी ही, साथ में आपके पास एक डुप्लीकेट भी क्रिएट हो जाएगी. So what are the steps? You can see here, this is the copy command in the home tab. Okay, so what you have to do, what are the steps that you need to follow to copy the text or the data? Simply, the steps to copy the text are, what are the steps? The steps to copy the text are, first, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू कॉपी. सबसे पहले जो भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको जो भी टेक्स्ट कॉपी करना है दैट यू नीड टू सिलेक्ट इट फर्स्ट. सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन क्लिक ऑन कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. यू कैन सी हियर, दिस इज योर क्लिपबोर्ड ग्रुप. ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब पे मिलेगा. ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे आप क्लिक करोगे तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलेगा आपको. इस ग्रुप में आपके पास एक कॉपी का ऑप्शन रहेगा. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपी. सो क्लिक ऑन कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. देन मूव द कर्सर टू प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस द टेक्स्ट. अब आपको आपका टेक्स्ट कहाँ प्लेस करना है, वहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके जाओगे. ओके, देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. फिर ये जो दिख रहा है आपको पेस्ट बटन, इस बटन पे आप क्लिक करोगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. इसी ग्रुप में, इसी सेक्शन में आपके पास कॉपी का भी ऑप्शन है एंड पेस्ट का भी ऑप्शन है. सबसे पहले जो भी टेक्स्ट कॉपी करना है आप क्लिपबोर्ड ग्रुप से पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिपबोर्ड ग्रुप से उसको कॉपी कर लेंगे. देन फिर उस भी जो भी आपने
ओके, तो कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद आपको आपके टेक्स्ट को जहाँ भी कॉपी करना है वहाँ ले जाके आप पेस्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो एज इट इज़ आपके न्यू लोकेशन पे सेव हो जाएगा. ओके, क्रिएट हो जाएगा. नाउ moving to page number 27. Open page number 27 now. You can see here the steps that you need to follow to copy and paste the text. Okay, so you can see here that in the home tab you have first what you have to do. जैसे आपने ओपन किया आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट आपने लिखा था उसको आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप से ये ऑप्शन, जो कॉपी का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था ना, उसको आप सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आपने कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर आपको उस टेक्स्ट को जहाँ भी फिर से रिपीट करना है वहाँ पे अपने कर्सर को इस तरीके से प्लेस करेंगे. प्लेस करने के बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपके पास एक ऑप्शन है पेस्ट का. पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से सेम टेक्स्ट 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा. ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन डू कॉपिंग. आप इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं. अब लुक एट हियर इन द ग्रीन सेक्शन, इन द ग्रीन बॉक्स you can see here. Okay, this is the green box. This is the shortcut key you can use to copy and paste the text. आप simply क्या कर सकते हैं, instead of going to the clipboard you can select the text, and with the help of the keyboard you can use the shortcut key Ctrl+C. Ctrl+C is used to copy the text. This is the shortcut key to copy the text, and Ctrl+V is the shortcut key to paste the text. Then after going to the place where you want to rewrite the text, simply select the key Ctrl+V from your keyboard. This is how you can copy and paste the text. Now just see the note given here. What the note is saying, that you can use the same method to copy and paste other objects also. ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड, सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट को मीन्स क्लिप आर्ट है, अगर आप क्लिप आर्ट डाल रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं, शेप्स डाल रहे हैं, तो सेम मेथड से आप ये सारी चीज़ें भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. यू विल लर्न अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हाउ वी कैन इंसर्ट दीज ऑब्जेक्ट्स इन नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग द टेक्स्ट. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग द टेक्स्ट. लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन. ओके, ओके, मूविंग द टेक्स्ट. व्हाट इज मूविंग द टेक्स्ट? मूविंग द टेक्स्ट, मूव करना. मूव करना बोलते हैं ना, वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर. जब हम मूव करते हैं मतलब हम जहाँ पहले थे वो जगह खाली कर देते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. दैट मीन्स मूविंग. वी आर मूविंग फ्रॉम हियर. जैसे हम बोलते हैं वी आर मूविंग फ्रॉम हियर, मीन्स हम यहाँ से जा रहे हैं. हम यहाँ से अगर जाएंगे तो क्या होगा, जहाँ हम थे वो जगह वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी. सिमिलरली मूविंग मीन्स आप जब टेक्स्ट को मूव करते हो, दैट मीन्स आप उसकी लोकेशन बदल रहे हो. यू आर चेंजिंग दी लोकेशन. जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी आपने उसको वहाँ से हटा दिया, एंड यू हैव गिवन द डॉक्यूमेंट अ न्यू लोकेशन. आपने उस टेक्स्ट को न्यू लोकेशन दिया. नाउ विल रीड द कंटेंट. मूविंग द टेक्स्ट means the text or the data from one location to another. एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को मूव करना. What are the steps? The steps to copy the text are. क्या स्टेप्स होते हैं कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए? सबसे पहले आप टेक्स्ट को तो कॉपी करोगे, जैसे आप कट करोगे. यहाँ पे हम टेक्स्ट को कॉपी नहीं करते, क्या करते हैं, कट करते हैं, फिर उसके बाद पेस्ट करते हैं. जब हमको कॉपी करना होता है तब हम क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं. लेकिन जब हमको मूव करना होता है तब हम क्या करते हैं, कट एंड पेस्ट यूज़ करते हैं. ओके, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. जब हमको लोकेशन बदलनी है तो हम उसको वहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, है ना. लेकिन अगर कॉपी करना है तो हम उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी.
जो भी टेक्स्ट हमको कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल हमको जॉनी जॉनी यस पापा ये वाला टेक्स्ट को क्या करना है, सॉरी कॉपी मूव करना है ये वाले टेक्स्ट को, तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन द कट बटन। अब ये कट बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस कट बटन पे आप क्लिक करोगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये आपका क्लिपबोर्ड सेक्शन है, इस सेक्शन में जो कट का ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में यू कैन सी हियर, ये होम टैब में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, सो इन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप आपके पास एक ऑप्शन होता है कट का। आप कट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो आपका टेक्स्ट यहाँ लिखा था यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। ओके, ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट। फिर हम अपने कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ हमको अपने टेक्स्ट को लिखना है। जहाँ भी हमें अपने टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को मूव करना है, हम उस जगह पे अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी, the next step will be click on the paste button in the clipboard group। अभी जो paste button दिख रहा है ना, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही ये बटन अवेलेबल है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी टेक्स्ट हमको मूव करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने कट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ से वो कट हो गया। ओके, कट पे क्लिक किया, फिर जहाँ भी इस टेक्स्ट को हमको प्लेस करना है हम अपना कर्सर उस प्लेस पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और न्यू लोकेशन जो हमने सिलेक्ट की है वहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन मूव द टेक्स्ट। नेक्स्ट, टर्न पेज नंबर 28। नाउ दिस इज पेज नंबर 28। यू कैन सी हियर, हमने ईटिंग शुगर नो पापा के पहले क्या लिखा था, जॉनी जॉनी यस पापा लिखा था इसके पहले यहाँ पे, ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर हमने अपने कर्सर कहाँ प्लेस किया था, इसके नीचे, ईटिंग शुगर नो पापा के नीचे अपना कर्सर प्लेस किया, तो जो भी टेक्स्ट हमने कट किया था वो यहाँ पे ईटिंग शुगर नो पापा के नीचे आ गया और यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस हो गया। ओके, अब नाउ सी द शॉर्टकट की टू कट द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को कट करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है ना, वैसे ही कट करने के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है, दैट इज नोन एज द की फॉर द टू कट द कंटेंट और द टेक्स्ट, द की दैट इज यूज इज Ctrl+X। Ctrl+X की को हम यूज़ करते हैं टू कट दी टेक्स्ट को कट करने के लिए। These keys are very important and it makes our task very easy. So you should learn all these shortcut keys. Okay. Now, okay. Navigation through a document. Navigation means moving. मूव करना, एक डॉक्यूमेंट में आपको अगर मूव करना है ऊपर से नीचे, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन, मिडिल सेक्शन में आना है, तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको एक टेबल फॉर्म में दी हुई हैं, इसको आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से, इससे आपको पता चलेगा दैट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। So these are the shortcut keys to navigate to your document. Okay, so this is all for today. From the next class we're going to start understanding the undo and redo command. Till here just do the reading of the chapter। जहाँ तक मैंने अभी आपको समझाया है वहाँ तक आप भी चैप्टर की रीडिंग करें, और जो मैंने एक बेसिक आपको कंसेप्ट समझाया है कॉपी करने का, मूव करने का, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। ओके, from next class we'll start the next topic. Thank you.